everyone, welcome to you all in today's class of environment. Today we will start Unit 11 Nation's Pride. Open your textbook, open page number 88. Unit 11 Nation's Pride. Read. Vats and Ayushi were watching TV. Just then Ketul and Honey came back from the temple with Grandma. Grandma asked Vats and Ayushi, "What are you watching in the TV? Do you know about him?" Vats and Ayushi, two children, are watching TV. Vats and Ayushi, ये दो बच्चे टीवी देख रहे हैं और तभी केतुल और हनी ग्रैंड माँ के साथ, दादी माँ के साथ टेम्पल से घर वापस आते हैं। तभी दादी माँ पूछती है वत्स और आयुषी से कि आप लोग टीवी में क्या देख रहे हो? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हो? वत्स सेज, यस, दिस इज अबाउट फियरलेस आज़ाद। वत्स कहता है हाँ, ये फियरलेस आज़ाद के बारे में है। फियरलेस मीन्स जिनके मन में कोई भी डर नहीं है, ऐसे आज़ाद के बारे में है। Grandma says, fearless Azad's name was Chandrasekhar. Since childhood he was brave. He sacrificed for the freedom of the country. Ketul and Honey, you also watch this film. Afterwards I shall tell you the story of one such fearless child. दादी माँ कहती है, फियरलेस आज़ाद का नाम चंद्रशेखर था। वो अपने बचपन से ही बहुत बहादुर था और उसने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। केतुल और हनी, आप दोनों भी ये फिल्म देखो। बाद में मैं आपको ऐसे एक फियरलेस चाइल्ड की स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी। Grandma says, see this picture and listen. दादी माँ बच्चों को ये पिक्चर दिखाती है और कुछ कहती है। See, what can you see in this picture? A railway track is here. A boy is passing by from the railway track. He has hanged a bag and he is looking to this broken track. Okay. Then in the second picture, the boy has taken out his shirt and he has kept his bag at one side and standing in the center of the railway track and showing the signal to the train, and the train is standing there. आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में एक लड़का रेलवे ट्रैक से पास हो रहा है, तब वो देखता है कि रेलवे ट्रैक तो टूट गया है, तो वो वहाँ पर देख रहा है। और दूसरे पिक्चर में उसने अपनी शर्ट निकाल के बैक साइड पर रख दी है और रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो गया है और ट्रेन को अपना शर्ट निकाल के रेड शर्ट दिखा रहा है और इसीलिए ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई है। Now let's move to the next page. On page number 89, here again two pictures are there related to the last page's picture. See, you can see the driver here. The driver is talking to that boy. Maybe he is congratulating to the child that he has saved the people in the train and he has prevented a big major accident. In this last picture, a man is giving an award to that boy and so many audience is here. So all are feeling proud for that boy that he has saved so many people and he has prevented a major accident. Observation. What do you see in the first picture? आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हो? सो द आंसर इज अ बॉय इज लुकिंग एट द ब्रोकन रेलवे ट्रैक। हमने क्या देखा कि जो लड़का है वो
टूटे हुए रेलवे ट्रैक को देख रहा है। सेकेंड वन, व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन द सेकेंड पिक्चर? सो द आंसर इज द चाइल्ड इज फ्लैगिंग हिज शर्ट टू स्टॉप द ट्रेन। दूसरे पिक्चर में जो लड़का है वो अपना शर्ट निकाल के उसका फ्लैग बना के ड्राइवर को सिग्नल दे रहा है। Why has the train stood still in the second picture? So the answer is the driver thought about some danger signal, so he stopped the train. ट्रेन इसलिए रुकी है क्योंकि ड्राइवर ने सोचा कि ये जो सिग्नल है कुछ डेंजर का है, इसलिए उसने ट्रेन वहाँ पर खड़ी कर दी है। Why is the guard congratulating this child? Because the boy saved them by giving a signal. उस बॉय ने सिग्नल देकर उनको बचाया, इसीलिए वो गार्ड उस बॉय को कंग्रेचुलेट कर रहा है। What would you do if you were in place of that child? अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते? So I would have tried each and everything to prevent the accident. मैं एक्सीडेंट से बचने के लिए और सबको बचाने के लिए सब कुछ ट्राई करता या करती। देन डिस्कशन, प्लेस ऑफ द इवेंट एंड नोट ऑन द इवेंट। चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट अबाउट एनी वन इवेंट, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस हियर एंड नोट ऑन द इवेंट। आपको कोई इवेंट लिखनी है कि कुछ जहाँ पे हुआ हो, किसी ने किसी को बचाया हो, ऐसी और कौन सी जगह पे ये हुआ, उस प्लेस का नाम यहाँ पर लिखना है और क्या हुआ था ये यहाँ पर नीचे दिए गए लाइंस में लिखना है। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 9090, डिस्कशन एंड राइट प्लेस ऑफ इवेंट। सेम कोई इवेंट का नेम लिखना है यहाँ पर, सो उस इवेंट की प्लेस लिखनी है। मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द इवेंट, जब कोई घटना घटी तब कौन से कैरेक्टर्स, कौन से लोग वहाँ पे थे जो हमेशा याद रहेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स के नेम लिखने हैं। देन नोट ऑन द इवेंट, उस इवेंट के बारे में कुछ नोट लिखनी है यहाँ पे। एंड नोट अबाउट द इवेंट, सो उस इवेंट के विषय में भी यहाँ पे कुछ लिखना है। So you have to complete this in your homework. Have a nice day. Goodbye.